friends. Today, now we are talking about the vulval cancer, the anatomy of vulva. The lymphatic supply is sentinel lymph node. Sentinel lymph node is the first lymph node involved in the cancer. Sentinel lymph node means the first lymph node next to the tumor or cancer. So, how does the cancer of vulva spread through the lymph nodes? First one is superficial inguinal lymph node, then deep inguinal lymph node, then pelvic lymph node. Lateral lymphatics bypass superficial inguinal lymph node and then goes to lymph node of Cloquet. Then the dye used for superficial inguinal lymph node is isosulfan blue. Inguinofemoral lymph node, if it becomes enlarged, so there is positive for metastasis in 75% of cases. If it is not enlarged, positive for metastasis in 25% of cases. Lymphatics from the midline structures, structure having less than 2 cm from midline. So for example, this is the center from midline. If it is within 2 centimeter, so it has chances to go opposite side also. So we have to do bilateral inguinofemoral dissection. If it is more than 2 centimeter, for example, it is more than 2 centimeter, then there are less chances to go on the opposite side. So there is unilateral lymph node dissection. Features of vulval cancer: 3 to 4% of gynae cancers are vulval cancer. Age group is 50 to 70. That is postmenopausal. Histological type is squamous cell carcinoma. Second most common melanoma and adenocarcinoma. Most common site is labia majora. Symptoms are pruritus, lump or mass in vulva, or pain and urinary symptoms. Spread is via lymphatics, most common way. Risk factor is human papilloma virus, vulval intraepithelial neoplasia, smoking, condition of vulva, lichen, so इसमें ट्रिक होती है PS, पता नहीं क्या होती है, भूल गया मैं. लाइकन स्क्लेरोसिस, कोंडाइलोमाटा एक्यूमिनाटा, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया, पेजेट, डिसीज ऑफ वल्वा. 4 चीज़ें होती है: लाइकन स्क्लेरोसिस, कोंडाइलोमा एक्यूमिनाटम, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया, and Paget disease of vulva. Low socioeconomic status and poor hygiene. These are the 6 risk factors for vulval cancer. Then keratinizing, it is of 2 types. Squamous cell carcinoma is of 2 types, keratinizing and Varti types. It is more common. Risk factor is lichen planus and differentiated VIN is there. And the risk factor for Varti type is HPV, human papilloma virus. It is V, it is W. Then it is unifocal, it is multifocal. Diagnosis and management of vulval cancer. Stage 1, size less than 2 cm, depth less than 1 mm. 1B, size more than 2 cm, depth more than 1 mm. Stage 2, tumor spreads to lower 1/3 of urethra, vagina, and 1/3 of anus. These are the 3 openings. 3, inguinofemoral lymph node is involved. And 4th, tumor is spreading to upper 2/3 of vagina and 2/3 of urethra and rectum. Stage 4. And pelvic lymph node can also be involved. Most important prognostic factor is lymph node involvement or not. Growth, if it is visible or not visible. If it is visible, we have to do veg biopsy via key forceps. If it is not visible, then we have to go inside via vulvoscopy. The management for the stages 1, 2, 3, 4. Lymph node involved. In the case of first and second, radical partial vulvectomy, removal of tumor plus lymph node. In the case of 1A, wide local excision. 1A is the basic stage. 1A, wide local excision with 2 cm tumor, free margin. 3 and 4, chemoradiation. Surgical management is what? Palpable, not palpable. If it is palpable, remove the enlarged lymph node.
Then on the frozen section, check for vulval cancer. If it is positive, then do bilateral inguinofemoral lymph node dissection. If it is negative on frozen section, then manage like non-palpable LNS. How to manage the non-palpable LNS? Not palpable stage the cancer 1A, any other stage. If 1A, no lymph node dissection required. If it is on any other stage, ipsilateral inguinofemoral lymph node dissection. On frozen section, nodes positive, nodes negative. If it is nodes positive, contralateral is also involved. If nodes negative, only unilateral dissection. If all conditions are fulfilled, size more than less than 2 centimeter, more than 2 centimeter away from margin, and no local extension. This is the surgical management for vulval cancer. Then post-operative status, large row status, देयर इज रिस्क ऑफ डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी होती है इसके अंदर। VIN प्लस इन्वेसिव कैंसर, इसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, इसके अंदर डिस्प्लास्टिक हो जाती है, मतलब इंटैक्ट ब्रोकन हो जाती है मेनली। VIN की 3 कैटेगरी होती है, 1 2 3। लोअर 1/3 डिस्प्लेजिया, 2/3 ऑफ एपिथेलियम इज इन्वॉल्व, एंटायर एपिथेलियम इज डिस्प्लास्टिक। इसमें 1/3 इन्वॉल्व होता है, इसमें 2/3 इन्वॉल्व होता है, इसमें एंटायर एपिथेलियम इन्वॉल्व हो जाती है और लिम्फेटिक वेस्कुलर इन्वेशन नहीं होता। यंग फीमेल में 90% HPV रिलेटेड होता है और इसमें रिग्रेस कर जाता है, लेकिन इसमें HPV रिलेटेड नहीं होता। और जो ओल्डर फीमेल के अंदर ये कैंसर की तरफ बढ़ जाता है। Malignancy where superficial inguinal lymph node sentinel lymph node biopsy is done. Sentinel lymph node biopsy कहाँ करते हैं? वल्वल कैंसर में करते हैं, सर्विकल कैंसर में करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, पिनाइल कैंसर एंड मैलिग्नेंट मेलिनोमा के अंदर करते हैं। तो पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार वापस से। वल्वल कैंसर में क्या करते हैं? सेंटिनल लिम्फ नोड को हम इंस्पेक्ट करेंगे कि इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। डाई यूज होती है आइसोसल्फान ब्लू, सुपरफिशियल, डीप एंड पेल्विक या फिर एक्सटर्नल लिम्फ नोड भी हम देखते हैं। और क्लैटोरल लिम्फेटिक्स क्या होता है? लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्वेट इन्वॉल्व होता है। इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड क्या होता है? इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड टू बी डाइसेक्टेड इन द वल्वल कैंसर। अगर वल्वा का कैंसर है और एनलार्ज प्लस क्लिनिकल सस्पिशन मिलेगा आपको वल्वा का आपने लिम्फ नोड को डाइसेक्ट किया और देखा कि एनलार्ज्ड है, तो चांस है मेटास्टेसिस होने के। अगर नहीं एनलार्ज्ड है तो 25% चांस है मेटास्टेसिस के लिए। फिर हमने पढ़ा कि मिड लाइन के 2 सेंटीमीटर अंदर है, तो कॉन्ट्रालेटरल या फिर बायलेटरल इंग्वाइनोफीमोरल डाइसेक्शन करना पड़ता है। और मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो ओनली यूनिलेटरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करना पड़ता है। देन फीचर्स ऑफ वल्वल कैंसर क्या होता है? मेनली जो होता है एज होता है 50 to 60 ईयर्स इसकी एज होती है। मोस्ट कॉमन टाइप स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। फीचर्स में प्लूराइटिस, लंप और पेन होता है। मोस्ट कॉमन स्प्रेड बाय लिम्फेटिक्स होता है। मोस्ट कॉमन साइड लेबिया मेजोरा होता है। देन रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वल्वल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, स्मोकिंग होता है, कंडीशन होती है 4, लाइकन स्क्लेरोसिस, कोंडाइलोमोटा एक्यूमिनाटा, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेशिया, पेजेट डिसीज ऑफ वल्वा, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पुअर हाइजीन। देन 2 टाइप का होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, क्रिएटिनाइजिंग टाइप और वार्टी टाइप। वार्टी टाइप क्या होता है? ये लेस कॉमन होता है और इसमें क्या होता है AV एंड W, तो HPV से एसोसिएटेड होता है। ये लाइकन स्क्लेरोसिस से एसोसिएटेड होता है और डिफरेंशिएटेड VIN इसमें मिलता है। ये यूनिफोकल होता है, मल्टीफोकल होता है। W को उल्टा कर दो तो M हो जाएगा और W के बाद में V आता है। देन इसमें क्या स्टेजिंग ऑफ वल्वल कैंसर है 1 2 3 4। 1 में क्या होता है? वल्वा तक की ट्यूमर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है और डेप्थ लेस देन 1 mm है। और 1B में क्या होता है? मोर देन 2 सेंटीमीटर, डेप्थ मोर देन 1 mm। ट्यूमर 2 में क्या होता है? 1 2 एंड 3 इसकी ओपनिंग होती है। 3 में क्या होता है? इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। 3rd क्या होता है? इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है। और 4 में क्या होता है? अपर 2/3 ऑफ वेजाइना एंड 2/3 ऑफ यूरेथ्रा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। स्टेज 4 हो जाएगी। अगर लिम्फ नोड अगर आपको मिल रहा है तो इसका पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर होता है। ग्रोथ अगर दिख रही है, नहीं दिख रही है, अगर आपको ग्रोथ दिख रही है बायोप्सी पे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फोर्सेप्स से उससे
क्लीन मतलब उसको रिमूव आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं दिख रही तो आपको वल्वोस्कोपी करनी पड़ेगी। ये पूरा हो गया। देन हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। स्टेज 1 होगा तो वल्वेक्टोमी करेंगे, और 3 और 4 होगा तो कीमो रेडिएशन करेंगे। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि लिम्फ नोड पाल्पेबल है कि नहीं है। लिम्फ नोड पाल्पेबल है, मतलब ट्यूमर जो हमारा है वो पाल्पेबल है, ट्यूमर पाल्पेबल है, और लिम्फ नोड एनलार्ज्ड है। रिमूव मतलब अगर आपको लिम्फ नोड पाल्पेबल मिला तो हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। फिर उसको फ्रोजन सेक्शन में लेके गए, देखा कि इसमें वल्वल कैंसर है तो बायलैटरल इंग्वाइनोफीमोरल डाइसेक्शन करेंगे। अगर नहीं है तो उसको नॉन पाल्पेबल की तरह ट्रीट करेंगे। नॉन पाल्पेबल को कैसे ट्रीट करेंगे, पहले कैंसर का स्टेजिंग करेंगे 1A या फिर एनी अनदर कंडीशन। अगर 1A स्टेज है तो कोई लिम्फ नोड डाइसेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और अगर एनी अदर स्टेज है तो क्या करेंगे, इप्सिलेटरल इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन। क्या करेंगे, इप्सिलेटरल इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे। देन फिर क्या करेंगे, इसको फ्रोजन सेक्शन में लेके जाएंगे। इसमें देखेंगे कि लिम्फ नोड नेगेटिव की पॉजिटिव है। अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाएगा तो कॉन्ट्रालेटरल इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन मतलब बायलैटरल करेंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या, या फिर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं इसके अंदर। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में चेक करेंगे आसपास का कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है। अगर नहीं हुआ तो यूनिलेटरल की तरह ट्रीट करेंगे, और आसपास का कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया सेंटिनल लिम्फ नोड तो कॉन्ट्रालेटरल इंग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। डीवीटी का रिस्क ज़्यादा होता है इसके अंदर। VIN में 3 कैटेगरी होती है, 1 2 3। लोअर 1/3 डिस्प्लास्टिक, 2/3 डिस्प्लास्टिक, एंटायर एपिथेलियल डिस्प्लास्टिक। मैलिग्नेंसी जहाँ पे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, वल्वल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पीनाइल कैंसर एंड मैलिग्नेंट मेलेनोमा। ये पूरा इसका ओवरऑल हमारा नोट्स है। वल्वल कैंसर पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।